Hello students, let's start our new chapter number 4, that is quadratic equation. So after completing both chapters related to algebra, that is polynomials and linear pair of linear equation in two variable, we are forwarding towards our new chapter quadratic equation. So when we studied about pair of linear equation in two variable, there we see that a particular linear equation in two variable represents a straight line, that is its geometrical representation, which means in the other word we can also say that any linear equation in two variable represent a straight line on a Cartesian plane. So first of all, we are going to discuss what are the quadratic equation and how do we justify the given equation is a quadratic or not. So for that, first of all, we are going to discuss what is the general form of quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equals to 0. This is the general form of quadratic equation where a never becomes 0, because if a becomes 0, then this terms becomes 0, and now this will eliminate and the remaining part of the equation can be a linear equation. So for continuing it with its property, that is it's a quadratic equation, we have to it is very important that a never becomes 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया, a अगर 0 हो गया तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ जो हमारा पोर्शन है वो क्या होगा, लीनियर रह जाएगा. तो चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है. ठीक है, तो जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है. अब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, एज लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन. ठीक है, सो एज सिमिलर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ figure on a plane, or you can say that on a Cartesian plane. So which figure? That figure is named as पैराबोला. उसको बोलते हैं पैराबोला, जिसका जनरल इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, तो ऐसे ही कोई ना कोई पैराबोला इससे रिप्रेजेंट होगा. ठीक है, कौन सा होगा, कौन सी एक्सिस पे होगा, ये सारी चीज़ें, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट इन आवर सिलेबस, लेकिन हम ये देख लें कि व्हाट इज द शेप ऑफ पैराबोला. पैराबोला कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस or as like this. This depends on quadratic equation, that how many times this parabola intersect the axis. If a parabola intersect the axis at a single point, which never means that the quadratic equation have only one root. As we studied earlier, that as many powers on the given equation, as many roots are available for that. So in case when a parabola intersect axis on a single point, which means both point of intersection lies on that same point, which means the roots of the given quadratic equation are equal. So अब रूट्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम जान लें रूट्स और जीरोज में, ये भी नहीं, रूट्स और जीरोज भी हम बाद में जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी दैट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेथड बाय विच वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लाइक इन आवर अर्लियर टॉपिक we have so many methods like substitution method, elimination method, cross multiplication method which is dropped due to COVID, and graphical method, है ना.
Likewise here also different type of methods which we are going to study in our next classes, in our continuous classes. So first of all we have to discuss the name or name of those methods. The first method is which we discussed since 2 or 3 years, 2-3 साल से हम वो मेथड पढ़ते आ रहे हैं. Solution of quadratic equation by फैक्टराइजेशन. ठीक है, पहला मेथड जो है वो है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में क्या करना है, वी हैव टू फैक्टराइज द गिवन इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रेक इट इन 2 लीनियर फैक्टर्स. हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक करना होगा, जिसके लिए हमने एक मेथड पढ़ा है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड. मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को जो x जिसमें x होता है ना, जिसमें x की पावर 1 होती है, उस टर्म को हम क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं 2 पार्ट्स में. और उसके बाद इसके जब 2 पार्ट होते हैं तो एक को क्वाड्रेटिक के साथ, एक को कांस्टेंट के साथ लेकर उसका हम आगे प्रोसीजर करते हैं. ठीक है. दूसरा मेथड क्या है, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर. ठीक, मेथड ऑफ मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर. इसमें क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो वो 2 तरीके से पाया जा सकता है. पहला कि या तो वो किसी गिवन लीनियर इक्वेशन का, गिवन लीनियर पॉलिनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे x + 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. व्हेन वी गोइंग टू एक्सप्लेन इट और यू कैन से दैट एक्सपेंड इट, वी गेट x² + 4x + 4. It can also be written in the expanded form as like this. So this is also a quadratic equation which is very familiar or very similar to the given general form of the quadratic equation. ठीक है. तो ये क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर जैसे 4 ना होकर 6 हो जाए, तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, तब ये इसके इक्वल नहीं होगा. तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू डू सम ऑपरेशंस टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. उसके लिए क्या करेंगे, ये हम अभी आगे के लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है. अच्छा, इसी मेथड से, यही मेथड जब हमारे संज्ञान में आया, जब हमारी नॉलेज में आया, आफ्टर दैट इट मेक्स अ रेवोल्यूशन एंड मेक्स अ ड्रास्टिक चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. And this method is invented by Sridharacharya. That is why the another method या another formula is named by that great mathematician named Sridharacharya. The method's name is Sridharacharya method, which can also be known in our mathematics as a quadratic formula. ठीक है. तो इसी मेथड से उन्होंने क्या किया, एक दिए हुए नॉर्मल से, जनरल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक फॉर्मूला तैयार कर दिया, जिससे कि आप उसके रूट्स को फाइंड कर सकते थे. उसके रूट्स मतलब रूट्स आर दोज वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन. ठीक है. अभी रूट्स और जीरोज में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे. ठीक है. सो मेथड ऑफ मेकिंग कंप्लीट स्क्वायर के बाद जो तीसरा टॉपिक आया वो आया
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये हमारे लिए नया है। बट फैक्टराइजेशन विच मीन्स इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किस नाम से हमें फेमस है अभी तक हमारे माइंड में, मिड टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है, जिसको हिंदी में मध्य पद वियोजन भी कहते हैं, ठीक है। सो दिस कैन बी अ वेरी दिस इज वेरी फैमिलियर विथ अस, द मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड इज वेरी फैमिलियर विथ अस, दैट मेथड can be applied or you will apply any other method by for making the two linear factors of the given quadratic equation। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन जो सबसे मोस्ट फैमिलियर मेथड है वो क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। सो अब इतनी चीज़ें हमारे सामने आ गई, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट्स एंड जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। देखिए जीरोज की डिफिनेशन में ये कहा गया था दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द गिवन पॉलिनोमियल जीरो। मतलब दिए हुए पॉलिनोमियल के लिए x की वो वैल्यू दैट वैल्यू ऑफ x for which given polynomial is या given polynomial becomes जीरो, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसे अगर इसमें पुट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक। तो इसको जीरो होने के लिए जरूरी, जीरो करने की जरूरत होती है, लेकिन रूट्स जो होते हैं, रूट्स एक और बहुत मेजर डिफरेंस होता है, जीरोज जो होता है वो पॉलिनोमियल्स का होता है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, ना कि जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है। पहले हमको अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सिर्फ इतना ही लिखा होगा, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन अगर यहाँ इक्वल जीरो लग गया तो ये बन गया इक्वेशन। पहले ये पॉलिनोमियल था, अब इसमें इक्वलिटी लग गई तो ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, जीरोज जो होते हैं वो पॉलिनोमियल के होते हैं और रूट्स जो होते हैं वो इक्वेशन के होते हैं। और रूट्स आर दोज वैल्यू, या यू कैन से दैट वैल्यू ऑफ x को आप वेरिएबल लिख सकते हो ना, कोई जरूरी नहीं, अगर वेरिएबल x नहीं है कोई दूसरा है तो उसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes या which satisfies the given इक्वेशन। अब सेटिस्फाइज करने का मतलब क्या होता है, तृप्त करना। जैसे हमको भूख खूब ज़्यादा लगी हो, हम खाना खा लेते हैं तो तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होने का मतलब मन करता है अब सो जाएं, तो यहाँ वो तृप्त नहीं है। यहाँ सेटिस्फाइज करने का मतलब ये होता है कि जो गिवन इक्वेशन है उसका कुछ ना कुछ लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS होगा, कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड यानी RHS होगा। तो वो LHS और RHS में अगर हम वो वैल्यू पुट कर दें, यानी रूट को हम पुट कर दें, यानी दैट वैल्यू को हम पुट कर दें, तो क्या हो जाए, LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाएं। So when the LHS of any equation is equals to the RHS of any equation for any value of variable, so that particular value is known as the root of the given equation। और zeros क्या होता है, zeros are that value या those value of variable which makes the given polynomial zero, यानी x की
या किसी भी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे अगर उस दिए हुए पॉलिनोमियल में पुट कर दिया जाए x की जगह पे या किसी भी वेरिएबल की जगह पे, जिस वेरिएबल की बात हो रही हो, तो वो क्या करे, उसको पूरा सॉल्व करने पे पूरा जीरो बना दे। उसमें वैल्यू पुट करके हम जब सॉल्व करें तो आंसर हमारा जीरो आ जाए। तो वो वैल्यू जो हमने पुट की थी x की जगह पे वो कही जाएगी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जबकि रूट्स क्या होते हैं, रूट्स को अगर हम दिए हुए इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई कर देंगे। मतलब कोई ज़रूरी नहीं, जैसे हम अपना एक दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू bx प्लस 7, ऐसे लिख दिया। ये जनरल फॉर्म है, इसको थोड़ा सा आप ट्रांसपोज इधर उधर करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आ जाएगा, c की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी। बट इफ वी पुट एनी वैल्यू ऑफ x हेयर एंड वी गेट whatever be the value of LHS and that same value be the that same value of RHS, so we can say that that value of x satisfies the given equation. So that value of x is known as the zero of the root of the given equation. अब जैसा हमने पढ़ लिया नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कि क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्या होते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या होते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाइज। अब नेचर ऑफ रूट की बात वहाँ से उठ के आती है, जैसे अभी हमने पैराबोला ड्रॉ किया था, जब यहाँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम देख रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि कहीं कहीं पैराबोला 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है और कहीं कहीं एक पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा था कि जितनी जगह पर कोई भी कर्व या कोई भी लाइन या कोई भी कर्व जितनी पॉइंट्स पर उसको इंटरसेक्ट करता है उसके उतने जीरोज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या इसके एक ही जीरो पाए जाएंगे? अगर एक ही जीरो पाए जाएंगे तो क्या ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा? इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी नेचर ऑफ रूट्स की। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये बताते हैं कि हमारे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कैसा होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा, है ना। तो यहीं से आपको एक नई चीज़ सुनने में मिलेगी, इमेजिनरी वर्ड। इमेजिनरी, अब आप सोचोगे नंबर भी इमेजिनरी होते हैं, तो इमेजिनरी मतलब होता है जिनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, जो वास्तव में होते ना हो। तो सबसे पहले हम जान लें इमेजिनरी नंबर्स किनको कहते हैं। इमेजिनरी नंबर जैसे कुछ ज़्यादा नहीं होता, रियल नंबर, जितने भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं वो सारे रियल नंबर्स थे। रेशनल, इरेशनल और इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ट्विन, प्राइम, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम भी जिनको बोलते हैं, जितने भी नंबर आपने पढ़े वो सब रियल में होते थे क्योंकि वो एग्जिस्ट करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन इमेजिनरी नंबर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, और इमेजिनरी नंबर की पहचान यही होती है कि रूट के अंदर निगेटिव करके लिखा हो कोई नंबर। अगर स्क्वायर रूट निकालना हो किसी निगेटिव नंबर का तो दैट इज इम्पॉसिबल। दैट इज वाई इट कैन बी इट इज सेड दैट इट इज़ एन इमेजिनरी नंबर। और सारे नंबर इमेजिनरी नहीं होते, केवल वही जो रूट के अंदर माइनस होता है वही इमेजिनरी नंबर होते हैं। इसके लिए मैथमेटिशियंस ने क्या किया, अंडर रूट -1 को लेटर आई से रिप्रेजेंट कर दिया, जिसका नाम होता है आयोटा। ठीक है, अब आयोटा के इन्वेंशन से क्या हुआ कि जैसे हमको अभी -4 का निकालना है तो -4 को हम फैक्टराइज कर सकते थे -1 × 2 × 2 में। तो जहाँ 2 का पेयर बन जाता, 2 बाहर आ जाता, -1 अंदर रह जाता और अंडर रूट -1 को हम लिख देते आयोटा। ठीक है, तो अब ये हो गया एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा अंकल अगर लगे हुए हैं तो ये बता देंगे आपको कि ये इमेजिनरी नंबर के घर खानदान से हैं। तो ये आई जो है ये आयोटा रिप्रेजेंट करता, मतलब इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ही हमारे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होंगे जिनमें क्या होगा, रूट्स उनके इमेजिनरी पाए जाएंगे। ठीक है,
तो रूट्स क्या होते हैं, जैसे ये जो रूट्स होंगे वो हमको यहीं से पता चल जाएंगे, इसी इक्वेशन को देखने से पता चल जाएंगे कि ये इमेजिनरी नंबर इनके रूट्स कैसे हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत होगी कि जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है क्या, ये कैसे आया, ये आगे पढ़ेंगे। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन का वीडियो है इसलिए हम हर चीज़ थोड़ी थोड़ी जान लें, जिससे हमारा माइंड सेटअप रहे कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब आपको यू है फॉर फाइंडिंग द रूट, क्वाड्रेटिक फार्मूला फॉर फाइंडिंग रूट्स, ठीक है। रूट्स को फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये b a c ये a b सब आपको यहीं से मिल जाएंगे, इसी क्वाड्रेटिक जनरल जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा उसी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है ना कि रूट्स या तो रियल होंगे या तो इमेजिनरी होंगे। अब रियल होंगे तो दो तरीके से होंगे, रियल होंगे तो इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी हैं तो इमेजिनरी ही रहेंगे, ठीक है। सो देयर आर टू बेसिक नेचर ऑफ रूट्स दैट ईदर दे आर रियल और दे आर imaginary. If they are real then they may be equal or unequal, ठीक है। So these all properties are totally depend on the value of a, b and c, and basically that's depend on this quantity under root b square minus 4ac। क्यों? क्योंकि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये जो आपको दिख रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद हमें मिला 0, सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला 0। तो ये पूरा जो इसके पीछे की कहानी है ये एलिमिनेट हो जाएगी, ये हम कर ही दें एलिमिनेट यहाँ से, ये ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी और तब हमको मिलेगा माइनस b बाई 2a। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, रूट्स तो रियल हैं क्योंकि कहीं स्क्वायर रूट लगा नहीं है जिसके अंदर माइनस हो, तो इससे ये चीज़ तो पता चल गई कि रूट्स क्या है, रियल हैं। और चूंकि हमको वैल्यू एक ही मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका एक ही रूट होगा, होंगे इसके दो रूट, लेकिन दोनों किसके इक्वल होंगे, माइनस b बाई 2a के। तो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, इक्वल टू 0 के है, तो रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। सो फॉर रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। और ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम नाम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविक्तकर, ठीक है। तो दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। सो इफ द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल के, ये 0 के इक्वल ना हो, ये क्या हो, d की वैल्यू क्या हो जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर बड़ी हो जाए 0 से, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो जाएगी तो उसमें दो केसेस आएंगे कि रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4, 9, 16 ऐसा कोई आता है तब भी इसके दो रूट फाइंड होंगे, और अगर नहीं आता है कोई परफेक्ट स्क्वायर तो भी इसके दो रूट फाइंड होंगे। बस क्या होना चाहिए, ये क्वांटिटी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाती है तो निगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0 एंड दोज नंबर विच आर लेस देन 0 पजेस माइनस साइन, ठीक है। सो अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 जाता है तो क्या होगा, ये क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी और ये क्वांटिटी कहाँ है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव क्वांटिटी मिल गई तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो इमेजिनरी हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन हमारी किस में आ जाएगी, इमेजिनरी रूट्स में आ जाएगी।
तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मिलता है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है। अच्छा, अभी हम ये डिस्कस करते हैं ना कि दो रूट हमको मिलेगा कैसे। फॉर्मूले में तो एक ही दिख रहा है, ये सॉल्व करने पे एक ही डिजिट आएगी। बिल्कुल गलत, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। दो वैल्यू हमको ऐसे मिलेगी, पहली वैल्यू को हम x1 से लिखते हैं, वो मिलेगी माइनस बी। यहाँ प्लस माइनस आप ध्यान से देखिए, दो साइन लगा है। पहली वैल्यू हमको प्लस साइन कंसीडर करने पर मिलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और जो दूसरी वैल्यू मिलेगी x2 दैट इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी कंसीडर निगेटिव साइन बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर ये 0 हो गया तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। माइनस बी में प्लस 0 करोगे माइनस बी ही बचेगा, यानी माइनस बी नीचे 2a। अगर ये 0 के है तो माइनस बी अपॉन 2a यहाँ से भी मिलेगा, माइनस बी अपॉन 2a यहाँ से भी मिलेगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हैव डिस्टिंक्ट रूट, है ना। अनइक्वल के साथ साथ यहाँ पे क्या होगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी, दो अलग अलग वैल्यू मिलेगी। एक मिलेगी विथ पॉजिटिव साइन, एक मिलेगी विथ निगेटिव साइन। ईदर दे आर कंप्लीट स्क्वायर और नॉट। बट इफ इट बिकम्स लेस देन 0, अगर ये 0 से छोटा हो गया तो इसके अंदर एक माइनस आ जाएगा। मिलेंगी तब भी दो डिस्टिंक्ट वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू मिलेंगी, अनइक्वल मिलेंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। डिस्टिंक्ट मतलब वही अलग अलग वैल्यू मिलेंगी और एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये नेचर ऑफ रूट्स की बात भी क्लियर हो गई। अब हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज, जिसमें हमें पहचानना होगा पहली एक्सरसाइज में कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। तो इसके पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि इक्वेशन चाहे जैसा दिया हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिंप्लीफाई द गिवन इक्वेशन एंड आफ्टर दैट we have to adjust it in the form of general form of quadratic equation ax square plus bx plus c। ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ बताते समय आपको ये चीज़ बताई थी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 हो, और एक चीज़ यहाँ से जो इरेज हो गई वो क्या थी, a नेवर बी 0। बाकी b और c आपका 0 हो सकता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो फैक्टर है वो ये है कि उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इफ़ द डिग्री इज लेस देन और ग्रेटर देन 2 देन इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ़ द डिग्री इज लेस देन 2 देन इट इज़ लीनियर इक्वेशन और एनी अदर, एंड इफ इट इज़ ग्रेटर देन 2 देन इट इज़ क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक और एनी अदर इक्वेशन एज अकॉर्डिंग टू इट्स हाइएस्ट पावर। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हम दिए हुए किसी भी इक्वेशन को हम अगर मैनेज कर ले जाते हैं किसी तरीके से, सही तरीके से उसको सिंप्लीफाई करके, तो हम कह सकते हैं कि हाँ दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम एक्सरसाइज अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक स्टे हेल्दी एट योर होम।